Hello everyone. ICSE Board Class 10th Chapter Share and Dividend. I am doing very important questions. 18 questions are selected. Now I have done already 6 questions in 2 videos. This is the third video, question number 7. Salman invests a sum of money, investment is equal to rupees. Salman invests a sum of rupees in rupees 50 share जिसकी फेस वैल्यू रुपीज़ 50, पेइंग 15% डिविडेंड 15%, quoted at 20% प्रीमियम. यू नो प्रीमियम इज वट, फेस वैल्यू के ऊपर प्रीमियम को ऐड करेंगे, वी गेट द मार्केट वैल्यू. तो प्रीमियम इज इक्वल टू 20%, 20/100 इंटू फेस वैल्यू 50 to the 210 is equal to 10 rupees. Now we get market value, face value plus 10 is equal to rupees 60. This is the market value. If his annual dividend is 600, annual dividend means annual income. If his annual dividend is 600, calculate number of shares. You apply the formula of annual income. D% into face value into number of share is equal to 600. D% कितना है? D% है 15%. 15/100 into face value 50 into n is equal to 600. 51 the 52 the n is equal to 600. ये 2 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे जाएगा. 15 1 the 15 4 the 0, we get 80. Number of share he bought 80. This is answer number 1. Now second part, his total investment का फार्मूला क्या होता है? मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स. मार्केट वैल्यू इज 60 इंटू नंबर ऑफ शेयर, दैट इज 80. 6 8 48 00. दिस इज आंसर नंबर 2, टोटल इन्वेस्टमेंट. Now third part is rate of return on investment. Rate of return on investment means R%. Third part, the formula is R% into MV is equal to D% into FV. R% into MV is equal to D% into FV. So we have to find R%. You write R/100 into market value is 60. D% is 15%. 15/100 into face value 50. You cancel 100. Now R is equal to 15 into 50 upon 60. 0 cancel. 3 2 the 3 5 the 2 cancel नहीं हो रहा. It means 25/2, which is equal to 12.5%. Answer number 3. Now this was question number 7. Now there are 3 questions, 7 to 9. Now 8th question. Vivek invest rupees 4,500. Vivek investment is given 4,500 in 8%. Dividend is 8%. रुपीज़ 10 शेयर जिसकी फेस वैल्यू रुपीज़ 10,
एट ₹15 जिसकी मार्केट वैल्यू 15. He sells the share when the price rises to ₹30. पहले प्राइस था 15, जब प्राइस 30 हो गया तो उसने शेयर बेच दिए. एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड इन 12% ₹100 शेयर एट ₹125. नो ही सेल्स द शेयर when the price rises to 30. He sells the share. He sells the shares when price rises to ₹30. जब 30 रुपये रेट हो गया तो उसे शेयर बेच दिए, तो उसे कहते हैं सेल प्रोसीड. जब शेयर हम बेच देते हैं उसे कहते हैं सेल प्रोसीड. जब हम शेयर बाय करते हैं तो उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट. जब शेयर हम बेचते हैं तो उसे कहते हैं सेल प्रोसीड. तो उसने शेयर बेच दिए. सेल प्रोसीड इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू कितनी है, किस रेट पे बेचे उसने, 30 पे, इनटू नंबर ऑफ शेयर. नंबर ऑफ शेयर कितने हमारे पास हैं, यू कैन फाइंड हेयर. नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू. दिस इज इन्वेस्टमेंट, दिस इज मार्केट वैल्यू, which is equal to 4500 upon 15 which is equal to 300. तो उसके पास 300 शेयर थे जो उसने बेच दिए एट द रेट ऑफ 30. तो दिस इज इंटू 30 which is equal to 9000. तो दिस वाज सेल प्रोसीड. नाउ ही invest the proceed in 12%. Invest the proceed mean he invest in the next company, other company. Investment, second company में उसने ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया, that is investment in the other company. In 12%, जिसका डिविडेंड परसेंट है 12%, और ₹100 शेयर जिसकी फेस वैल्यू 100 है और मार्केट वैल्यू 125, जिसकी फेस वैल्यू 100 एंड मार्केट वैल्यू इज ₹125. नाउ calculate the sale proceed. This is a sale proceed. We have already calculated. Answer number 1. जैसे ही वो कहता है कि शेयर बेच दिए तो इमीडिएट यू फाइंड सेल प्रोसीड. और उसने यहाँ लिखा भी है फाइंड द सेल प्रोसीड. दिस इज योर आंसर नंबर 1. सेकंड, द नंबर ऑफ ₹125 शेयर ही बायज. ये वाले शेयर कितने बाय किए उसने, दैट मीन n इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू. 525 the 5, 18 the 90, 00, 55 the 53 the 15, 30, 56 the 0, 57 the 35, 2 the. The number of share ₹125 share he buys, that is 72. This is answer number 2. The third part, the change in his annual income from dividend. इसका क्या मीनिंग है, चेंज हिज एनुअल इनकम, इट मीन्स दोनों की एनुअल इनकम फाइंड करो और उसका क्या चेंज आया उसका, तो माइनस करके देख लेंगे. तो एनुअल इनकम ऑफ फर्स्ट कंपनी D% इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर. D% मीन दैट इज 8%, 8 upon 100 into face value 10 into number of share 300. This 20 cancel, we get 8 or 24 into 10, 240 rupees. This is the annual income. Now second company, the annual income. I have already done the formula. Now next time without formula you can solve. Annual income D%. D% at 12% mean 12 upon 100 into face value 100 into number of share 72. We get
12 to the 24, 2, 12 से 84 प्लस 2, 86। ना पहली कंपनी में उसको इनकम था 240 और नेक्स्ट कंपनी में इनकम है 864। व्हाट इज चेंज इन इनकम? चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 864 माइनस 240 we get 624। 624 इसका इंक्रीज हो गया, यू कैन राइट इंक्रीज। चेंज इन इनकम क्या आया? 625 इंक्रीज। एंड दिस वाज द थर्ड पार्ट। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। Rohit invested rupees 9600. Investment is rupees 9600 on rupees 100 share, जिसकी face value rupees 100 at rupees 20 premium. Premium is rupees 20. Now market value will become 100 plus 20, which is equal to 120. Paying 8% dividend. Dividend percent 8%. Rohit sold the share when the price rose to rupees 160. Sale proceed. जब शेयर उसने बेच दिए तो क्या रेट बेचे? 160। कितने शेयर बेचे? जितने शेयर उसके पास थे। तो उसके पास कितने शेयर थे? दैट इज नॉट गिवन, यू विल हैव टू फाइंड। एन इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट इज 9600, मार्केट वैल्यू इज 120, 0 कैंसिल, 12 8 द 96, 80। तो उसके पास कितने शेयर थे? 80। तो यू मल्टीप्लाई विद 80 एट द रेट ऑफ 160 ही सोल्ड। 16 8 द 12800। दिस इज सेल प्रोसीड। जैसे वो शेयर बेचता है यू फाइंड द सेल प्रोसीड। नाउ नेक्स्ट इज न्यू नंबर ऑफ शेयर्स। लेकिन हमने क्या लिखा अभी तक? ही इन्वेस्ट द प्रोसीड। ही इन्वेस्ट द प्रोसीड एक्सक्लूडिंग डिविडेंड। उसमें डिविडेंड जो इसका मिलेगा वो ऐड नहीं करना। इन 10% रुपीज़ 50 शेयर एट रुपीज़ 40। तो इसमें लिखो ही इन्वेस्ट द प्रोसीड मीन इन्वेस्टमेंट जितने के उसने बेचे 12800। 12800 एक्सक्लूडिंग डिविडेंड मीन इसमें डिविडेंड ऐड नहीं करना। इसमें डिविडेंड ऐड नहीं करना। अगर लिखा होता इंक्लूडिंग डिविडेंड, फिर हम इसका इनकम निकालते, इनकम मीन डिविडेंड, तो ऐड करके ही इन्वेस्टमेंट लिखते हम। तो एक्सक्लूडिंग डिविडेंड मीन वी आर ओनली राइट सेल प्रोसीड। इन 10%, जिसका D परसेंट 10%, रुपीज़ 50 शेयर जिसकी फेस वैल्यू रुपीज़ 50 एट रुपीज़ 40 जिसकी मार्केट वैल्यू रुपीज़ 40। फाइंड दी ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर। नो ओरिजिनल नंबर शेयर इज दिस, इट मीन्स आंसर नंबर 1। सेल प्रोसीड we have got sale proceed, this is answer number 2. New number of share, this is N is equal to investment upon market value. New number of share is 320, that is answer number 3. Now change in two dividend, दोनों की इनकम में क्या चेंज आया? इट मीन दोनों की इनकम निकाल लो तो डिफरेंस देख लेंगे। एनुअल इनकम D% इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर। D% कितना है इसका? 8
8 upon 100, face value 100, number of share 80, 8 at the 64. Now here annual income, D percent into face value into number of share. D percent mean 10% mean 10 upon 100, face value 50 into number of share 320. Now those zero cancel. 5 into 320 1600. Now इसका डिफरेंस देख लो कितना आया. Change in income mean difference. Change in income 1600 minus 640, 960 इंक्रीज हो गया उसका चेंज इन इनकम. एक कंपनी के शेयर बेच दिए, दूसरी कंपनी के बाई किए, उसको इनकम में कितना इंक्रीज हुआ, दैट इज 960. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9. नाउ आई हैव डन क्वेश्चन 7 to 9. This was third video. My dear student, if you like this video, if you like the concept, please like it, share it as much as possible, and please subscribe my YouTube channel for more videos. Thanks.